Good morning, everyone. I hope you all are doing fine and are finding these questions interesting and brainstorming. What you have to do is you have to revise these questions again and again so that these questions and this chapter does not become a problem for you. These questions are fairly easy. All you need to do is to understand the concept. Today we will be doing from question number 11th of exercise 9.3. So let's have a look on question number 11th. Question number 11 says Anjana's mass is 45 kg and Seema's mass is 40 kg. अंजना 45 kg की है और सीमा सिर्फ 40 kg की है. Now what you have to do is express Anjana's mass as a percentage of Seema's mass. अंजना का मास सीमा के मास के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. सो क्या करोगे, मास ऑफ अंजना अपॉन mass of Seema into 100. अंजना का मास कितना है 45, सीमा का मास है 40, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 5 को 5 से. सो ये बनता है 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 2 10 and 1 11, 112.5%. So Anjana's mass is 112.5% of Seema's mass. लिखेंगे आप यहाँ पे Anjana's mass is 112.5% of Seema's mass. अब बी पार्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस सीमा's mass as a percentage of अंजना's mass. तो आप उल्टा करना है, mass of सीमा divided by mass of अंजना मल्टीप्लाइड बाय 100. तो सीमा का मास कितना है 40 kgs, अंजना का मास कितना है 45 kgs मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 0. तो ये कितना बना 800 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 जा 72, कितना बचा 80, 9 8 जा 72, कितना बचा 80. तो आंसर आ गया 88.88%. Therefore Seema's mass is 88.88% of अंजना's मास. आपको क्या करना था, आपको निकालना था कि अंजना का मास सीमा के मास की रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है और सीमा का मास अंजना के मास के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12. In a class, 25% of the students wear glasses. So, percentage of students wearing glasses is 25%. मतलब क्लास में 25% बच्चों को चश्मा लगा हुआ है. ठीक है. If there are 8 students wearing glasses,
if number of students wearing glasses is number of students wearing glasses is 8, then you have to find out the number of students in a class. तो मैं ये मान लूं कि क्लास में x students है, so let us take number of students in the class to be x. ठीक है, अब तुम्हें बोला है 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, और वो 25% मिलके कितना बना रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स. सो 25% ऑफ x इज 8. अब देखो मैंने x लिया है, मैंने माना है टोटल बच्चे कितने हैं, x है, और बोला है कि 25% बच्चे ग्लासेस पहनते हैं और 8 बच्चे ग्लासेस पहनते हैं. तो हमें पता है 25% किसके बराबर है, 8 के बराबर. 25% किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. सो 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8. 25 1 25, 25 4 100. So x equals to 8 into 4, which is 32. So there are 32 students in the class. अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो क्या बोला था, 25% जो बच्चे हैं वो ग्लासेस पहनते हैं. हमने निकाला 32 बच्चे हैं, तो निकालो 25 अपॉन 100 इंटू 32. 25 4 100, 4 8 32. अब बोल रहा है कि इनके हिसाब से 8 बच्चे ग्लासेस पहनते हैं, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 8 बच्चे ग्लासेस पहनते हैं. Therefore, our answer is absolutely correct. Now, moving forward to question number 13. Ankur attempts 65% of the question in the test. Questions attempted are 65%. Fine. Then if he attempts 52 questions, number of questions attempted are 52. So you have to find the number of questions in the test. तो टेस्ट में कितने questions थे? So let us take total number of questions to be x. अब बोला है कि उसने 65% ऑफ टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो कि हैं 52. सो 65 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 52. सो 5 1s are 5, 5 3s are 15, and 5 2s are 10 and 0. So x is equal to 52 into 20 divided by 13. 13 4s are 52. So there are 80 questions in the examination. Fine. Moving forward to question number 14. Jatin's monthly expenditure increased from 25,000 to 28,000. Initially कितना था expenditure? 25,000. फाइनली इंक्रीज होके कितना हो गया एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 28,000. So what you have to do? You have to find out percentage increase in his expenditure. Percentage increase
इन एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइनल एक्सपेंडिचर माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर अपॉन, किससे कंपेयर करेंगे हम? इनिशियल से ही तो कंपेयर करेंगे कि पहले कितना खर्च कर रहा था, इनटू 100। फाइनल कितना है? 28,000। पहले कितना करता था? 25,000 अपॉन 25,000 इंटू 100। 25 माइनस 28 इज 3,000 अपॉन 25,000 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हुआ? 3 0 से 3 0 कट गए। ठीक है, 25 1 25, 25 4 100। सो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12% इंक्रीज हो गया। कैसे? एट 12, 3 into 4 12। Therefore his expenditure has increased by 12%। कैसे निकाला मैंने ये? मैंने निकाला कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो अब कितना खर्च कर रहा है माइनस पहले कितना खर्च कर रहा था, और कंपेयर किससे करोगे? पहले कितना खर्च कर रहा था उसी से तो कंपेयर करोगे। तो बता दिया कि वो कितना उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 15। The water level in a tank decreased from 30 centimeter to 25.5 centimeter. So initially कितना था? Initial level of water was 30 centimeter. Final level क्या हो गया? 25.5 centimeter. Now what you have to do? You have to find out percentage decrease in water level. परसेंट, अब देखो परसेंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज डिक्रीज इन वाटर लेवल विल बी इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इनिशियल कितना था? 30, फाइनल हुआ 25.5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। 30 में से 25.5 माइनस करोगे तो आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हुआ 45 अपॉन 300 इंटू 100। 2 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15। So there is 15% decrease in water level. Therefore there is 15% decrease in water level. ये वाला फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, और नहीं लिखवाए हैं तो इसे बॉक्स बना के लिख लो। वैसे आई रिमेम्बर आई हैव मेड यू राइट दीज formulas. Now your homework is you have to do these questions again. आपको ये क्वेश्चंस वापस से करने हैं, ठीक है? तभी समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, फॉर्मूले को हाईलाइट करो, नोट डाल के लिखो, और इन क्वेश्चंस को वापस से करो, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.